امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے ایران جب بھی آبِ ہرمز میں جہازوں پر فائرنگ کرے گا امریکہ اس کے بدلے ایران کا ایک پل یا پاور پلانٹ تباہ کرے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا ترقیاتی منصوبوں کی ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا نہ چچا وزیر اعظم رہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں میری حکومت ہے، نون لیگ کی بھی تین بار حکومت رہی، سڑک بنانی تھی تو بنا کر دکھا دیتے۔ ان کی نظر میں پنجاب صرف رائے ونڈ تک ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ راجن پور پوٹوہار کا حال کیا ہے؟ گلگت بلتستان میں کہا جی بی کو لاہور بنا دیں گے، جو قصور کو لاہور نہیں بنا سکے وہ کسی اور شہر کو کیا بنا۔ لاہور، سیالکوٹ، گجرات، ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، سیالکوٹ میں گلیوں شاہراہوں پر پانی جمع، نکاسی کا کام جاری۔ گجرات میں سڑکیں اور نشیبی علاقے زیریاب رہے، ریلوے ٹریک سمیت مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع رہا۔ فیصل آباد میں نشیبی علاقے زیریاب آئے، ٹوبہ ٹیک سنگھ، وزیر آباد، حافظ آباد، سرگودھا، بھکر، لیا میں بھی سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع رہا۔ لاہور میں بارش کے بعد مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی مکمل۔ لارنس روڈ، ایک موریا پل، قرطبہ چوک، وارث روڈ، ایمپریس روڈ اور لکشمی چوک کلیئر کر دیے گئے۔ جی پی او روڈ، ریلوے اسٹیشن، راوی روڈ، تاجپورہ اور وحدت روڈ سے بھی پانی نکال دیا گیا۔ گاڑیاں، رکشے اور موٹر سائیکلیں بارش کے پانی میں بند ہوتی رہیں۔ پنجاب میں بارش سے دیواریں اور چھتیں گرنے سے 9 افراد جاں بحق، 37 زخمی۔ گجرانوالہ میں 4 افراد جاں بحق، کاموکی انڈر پاس میں پانی میں ڈوب کر ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پاک پتن اور ساہیوال میں چھتیں گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ لالا موسیٰ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پاکستان کی سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی مذمت، کہا حوثی باغیوں کے اقدامات علاقائی سلامتی اور سمندری نقل و حمل کی آزادی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے مطابق پاکستان کو جوابی کارروائی کا حق ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا۔ بحیرہ احمر میں 4 آئل ٹینکرز نے بحری راستہ تبدیل کر لیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، حوثی گروپ کی دھمکی کے بعد یورپی یونین کی بحری جہازوں کو وارننگ، کہا بحیرہ احمر اور خلیج عدن سے گزرنے والے جہاز احتیاط کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جدید ٹیکنالوجی سے خود مختاری کا دفاع کریں گے۔ مارکا حق میں افواج نے سائبر سیکیورٹی سے سرحدوں کا دفاع کیا۔ ڈرونز کے 60% سے زائد تیاری ملک میں ہو رہی ہے۔ انڈسٹراس ایکسپو میں اسپارک اینڈ ایلیویٹ پروگرام کے آغاز کا اعلان، کہا دیگر ممالک کی ٹیکنالوجی کے محتاج نہیں، اپنی تقدیر خود لکھیں گے، آئندہ نسلوں کے لیے خوشحال اور روشن پاکستان بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید حسن منیر کی بھی تقریب میں شرکت۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 10 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ضلع سورات میں 7 اور مستونگ میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ فتنہ ہندوستان کی 2 خودکش بمبار خواتین اور سہولت کار گرفتار۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ ریاست دشمن عناصر کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔ فورسز کی قربانیاں اور کامیابیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کے زر مبادلہ استحکام فنڈ کے لیے درخواست کر دی۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے امریکی وزیر خزانہ کو 5 سالہ مالی سہولت کی تجویز دی۔ درخواست ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری کے بعد سامنے آئی۔ منظوری کی صورت میں امریکہ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، روپے پر دباؤ میں کمی ہونے کی توقع۔ وزارت خزانہ اور امریکی محکمہ خزانہ کا فوری رد عمل سامنے نہ آ سکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر خزانہ سے ملاقات، معاشی تعاون اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ کا عالمی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی مالیاتی ادارے کے وفد سے بھی ملاقات۔ توانائی، IT، انفراسٹرکچر، معدنیات سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور۔
पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत आज के दिन के लिए फी लीटर 320 रुपये 73 पैसे मुकर्रर, डीजल की कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। 2 दिन में डीजल तकरीबन 13, पेट्रोल 4.5 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। कल पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत क्या होगी, ऐलान आज रात होगा। पेट्रोल पंप मालिकान का आज रात से हड़ताल का ऐलान, कहा रोजाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है, कीमतें रोजाना नहीं माहाना बुनियाद पर तय करें। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा पंप मालिकान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया है, मामला तय करेंगे। गैस गर्दिशी कर्ज में 1700 अरब कमी का मंसूबा, IMF राजी ना हो सका। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 3300 अरब रुपए तक पहुंचने पर IMF का तशवीश का इजहार। हुकूमत को गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए तजावीज़ दे दी। कहा गैस कंपनीज के नुकसानात को भी सेटलमेंट प्लान में शामिल किया जाए। मामले पर हतमी मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्के। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कमीशन सच और झूठ देखे, जिसने गलत किया है उसको सजा दें, तहकीकात मुकम्मल होने तक एहतजाज खत्म किया जाए। हुकूमत कोई कार्रवाई न करे, एहतजाज करने वाले पूरे कश्मीर को सजा क्यों दे रहे हैं? इंटरनेट बंद करना जुल्म है, हम हालात को बिगाड़ना नहीं सुधारना चाहते हैं। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल हमले, अमेरिकी फिजाइया ने ईरान के शहर तबरेज़ के करीब फौजी तंजीब को निशाना बनाया। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, सेरेक और दीगर साहली इलाकों में हमले किए गए। इराक में मारे जाने वाली अमेरिकी फौजियों की लाशें आज अमेरिका पहुंचाई जाएंगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप डेलावेयर में लाशें वसूल करेंगे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत में मुतअद्दिद रडार सिस्टम्स गैर फाल करने का दावा। उर्दन और बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा गुज़िश्ता शब अबनाए हुर्मुज़ में बहरी हिफाजती ज़वाबित की मुबैना खिलाफ वर्जी की गई। दुश्मन की किसी भी दरअंदाजी का भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका भी बहरान के सिफारती हल के लिए मुज़ाकरात पर आमादा है। तेहरान संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। ईरान को अपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मैनिला में चीनी हम मनसब से मुलाकात, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा पुरअमन तनसीबात पर अमरीकी हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक अमरीकी दावे बेबुनियाद हैं। ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए मुत्तहिद और तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की भी ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात, रेलवे तिजारत सरहदी राब्तों और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सिकंदर मोमिनी का नादरा हेडक्वार्टर का भी दौरा। भारत में तलबा और नौजवानों का एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। तशद्दुद के बावजूद मुजाहिरीन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। नई दिल्ली में पुलिस के साथ भारतीय फौज का भी मुजाहिरीन पर तशद्दुद, 2 अस्पतालों में 100 से ज़्यादा जख्मियों को लाया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तलबा तशद्दुद केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा हमारा वक्त ज़ाया ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन का तफसीली जायज़ा, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादले ख़याल। इसहाक़ डार का एशियाई तरक्याती बैंक के हेडक्वार्टर का दौरा, आला हुकाम से मुलाकात। जनूबी वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मरने वालों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। टांग वज़ीरिस्तान शहरा डूब गई, कई गाँव ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में बारिशों से हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 19 ज़ख्मी। PDMA के मुताबिक बारिशों से 28 घर मुतासिर, 6 मुकम्मल तबाह।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद निकासी आब का काम मुकम्मल। गुजरात में 3 घंटे में पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। पीडीएम में पंजाब की मानसून की सूरत हाल पर फैक्ट शीट जारी कर दी। दरियाओं, डैम्स और ब्राजेस की मुसलसल निगरानी का अमल भी जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़िलाई इंतज़ामिया को कमज़ोर और नाकिस छतों की निगरानी की हिदायत। कामोकी के करीब नाला ढेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़ने से मुतादिद मकामात पर बंद में शगाफ पड़ गए। सैलाबी पानी देही आबादियों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 8 साल बाद B हो गई। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने -B से बढ़ाकर B की। कहा IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से रेटिंग बेहतर हुई। माली साल 2027 में पाकिस्तान की तरक्की की शरह 3.5% मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का S&P ग्लोबल की रेटिंग का खैर मकदम। कहा मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज आलमी सतह पर तस्लीम किए जा रहे हैं। B रेटिंग से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। सरमायाकारी और मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। इंटरनेट इस्तेमाल और मोबाइल सिम पर कॉल करना महंगा पड़ेगा। PTA की इजाज़त के बाद टेलीकॉम कंपनीज ने फ़ोन पैकेजेस में इजाफा कर दिया। PTA ने 33% तक इजाफे की इजाज़त दी। माहाना कॉल और डाटा पैकेजेस की कीमत 500 रुपये तक बढ़ा दी गई। पंजाब में देही ख़वातीन को मुआशी खुद मुख्तारी के लिए मवेशी दिए जाएंगे। पहले मरहले में डीची खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, कोटद्दू, बहावलपुर समेत 13 अजला शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा इक़दाम से गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। सुहेल आफरीदी ने कहा सूबाई हुकूमत इमदाद से तिजारत की जानिब मुंतकिली की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हाई कमिश्नर ने कहा कनाडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ तिजारती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। सिंध हुकूमत का सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के खिलाफ इक़दाम का फैसला। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा बाज़ अनासर गुमराह कुन मालूमात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी इज़हार की आड़ में गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देंगी। हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मोशरफे ज़्यादती केस, दोनों मुजरमान की सज़ाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। कहा DNA, मेडिकल और फॉरेंसिक शवाहिद ने जुर्म साबित कर दिया। शनाख्त परेड में दोनों मुलजमान की दुरुस्त शनाख्त हुई। मुजरमान को इज्तमाई ज़्यादती केस में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1703 पॉइंट्स की कमी। 1,74,429 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 4,600 रुपये फी तोला महंगा। नई कीमत 4,33,836 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,71,944 रुपये का हो गया। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा इंडस रास एक्सपो का मकसद मकामी तहकीक और टेक्नोलॉजी को तिजारती सतह पर लाना है। हम गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में 14 दर्जे ऊपर आए हैं। मार्के हक में टेक्नोलॉजिकल जंग पर भी मुकम्मल कंट्रोल का मुजाहिरा किया गया। डिजिटल तब्दीली पायदार मुआशी तरक्की का बुनियादी सतून है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $92 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड। अमाराती खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा मुआहदे के तहत सिविल एटमी तवानाई के शोबे में तवीलुल मुद्दती शिराकत दारी कायम की जाएगी। मुआहदा अमरीकी कांग्रेस के सामने मंजूरी और जायजे के लिए पेश किया जाएगा। अमरीकी वजीर जंग पीर हैग्जित ने कहा कि ईरान जंग पर अब तक $37 अरब से जायद लागत आई। मजीद $87 अरब की ज़रूरत है। अमरीकी वजीर जंग जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन कैन के हमरा सेनेट कमेटी के सामने पेश हुए। कहा जंग पर आने वाले अखराजात पहले तखमीने से $8 अरब ज़्यादा है। कानून साजों ने कहा यह आपकी नाकामी है।
वजीर जंग और अमरीकी सेनेटर्स में शदीद तल्ख कलामी। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम का अमरीकी फौजी तैयारों के लिए बरतानवी अड्डे देने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बहरे हिंद में वाक़ अड्डे अमरीकी तैयारों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फैसले पर बरतानवी अपोजिशन की मुखालिफत।